27 যেটো পৰীক্ষা হ'ব এই পৰীক্ষাটো কিছু নতুন নিয়মৰ জৰিয়তে হ'ব। এটা কথাই কৈছোঁ, আজি ৰিজাল্টত আপোনালোকে দেখিছে যে 4টা ষ্ট্ৰীমৰ কথা আজি ৰিজাল্টত আছে, কিন্তু 2027ত মাত্ৰ 3টা ষ্ট্ৰীম থাকিব, ছায়েন্স, আৰ্টছ এণ্ড ভকেশ্যনেল। কমাৰ্চ ভকেশ্যনেলটো উইথড্ৰ হ'ব আৰু নতুন কথা হ'ব। আৰু নতুন কথাটো হ'ল যে আগতে ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'বৰ কাৰণে সেই ষ্টুডেণ্টজনে ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, মেথমেটিক্স আৰু বায়'লজি এই 3টা ছাবজেক্ট ল'বলগীয়া হৈছিল। আউট অফ ডেট 3টা ছাবজেক্ট তেওঁলোকে অফ কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু 27ৰ পৰীক্ষাত যিসকল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব, ইফ এনি ষ্টুডেণ্ট চুজেছ অৰ অপছ only one science subject, physics, chemistry, biology or mathematics, he or she will be considered as science students. এইটো এটা আমাৰ নতুন কথা। যিসকল আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট হ'ব তেওঁলোকে কিন্তু চি গ্ৰুপৰ পৰা এটা ছাবজেক্ট, যিটো আমাৰ স্কিল ছাবজেক্ট এটা লোৱাটো আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত মেণ্ডেটৰী। আমি 3টা গ্ৰুপত ভাগ কৰি দিছোঁ। ইতিমধ্যে সব নটিফিকেশ্যন আমি জাননী জাৰি কৰিছোঁ। স্কুল কলেজ স্কুলত ফাৰ্ষ্ট ডে পৰীক্ষা ইন দি ছেইম ৱে হৈ গৈছে। গতিকে আমাৰ যিবিলাক শিক্ষানুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কত অৱগত হৈছে। এইটো গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত, কিন্তু কোৰ ছাবজেক্টটো ল'বই লাগিব। কোৰ ছাবজেক্ট অসমীয়া, ইংলিছৰ লগতে অসমীয়াৰ লগতে যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মৰুভূমি, বড়ো ইত্যাদি আছে সেইখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু কোনোবাই যদি MIL নলয় তাৰ জেগাত তেওঁ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ ল'ব পাৰিব। মানে আৰ্টছ, ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত কোৰ গ্ৰুপৰ 2টা ছাবজেক্ট মেণ্ডেটৰী। আৰু বি গ্ৰুপত এজন ছাত্ৰই যদি ছায়েন্সত কেমেষ্ট্ৰি লয়, এট দি ছেইম টাইম হি অৰ চি হেজ ৰাইট টু চুজ টু অপ বিজনেছ ষ্টাডিজ, একাউণ্টেঞ্চি ইত্যাদি। তেওঁ যিকোনো ছাবজেক্ট ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি আগৰ যিবোৰ বান্ধোন আছিল সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে খুলি দিছোঁ। পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত এটাই মেণ্ডেটৰী যে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টে চি গ্ৰুপৰ পৰা এটা স্কিল ছাবজেক্ট ল'বই লাগিব। অহা বছৰৰ পৰা 33% অল ছাবজেক্টত অল ষ্টুডেণ্টছে পাবই লাগিব। 30%ত পাছ কৰাটো আৰু এতিয়া নহয়, ইতিমধ্যে 11ত সেইটো আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ। আৰু 6টা ছাবজেক্ট কিন্তু মেণ্ডেটৰী। এইটো আপোনালোকক কৈছে ইতিমধ্যে। আগতে আমাৰ 6টা ছাবজেক্ট ল'লে 5টাত এপিয়াৰ হ'লেও হয়, কিন্তু এইবাৰ 6টা ছাবজেক্টটো ল'ব লাগিব আৰু 6টাতে দে উইল হেভ টু এপিয়াৰ। বাট কিন্তু পাছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আউট অফ ডেট যদি 6টাত 5টাত তেওঁলোকে পাছ কৰে, ইনক্লুডিং যি 2টা আমাৰ কোৰ ছাবজেক্ট 5টাত পাছ কৰিলেও কিন্তু হ'ব। ৰিজাল্ট উইল বি আউট অফ 5। ইন এডিশ্যন টু ডেট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ছায়েন্স এটা আছে, যিটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট হ'ব, কলেজত হ'ব এডন ছাবজেক্ট। আৰু নতুন এটা ছাবজেক্ট আমি ক্লাছ 12ত কৰিছোঁ, ইট উইল বি দ্য 7th ছাবজেক্ট, 7 নম্বৰৰ ছাবজেক্ट। এইটো হ'ব জেনেৰেल स्टडीज। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आप लोगों ने एक वीडियो नोटिफिकेशन देख ही लिया है, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। क्या क्या न्यू चेंजेस आए हैं और फिर हम बात करेंगे अपने कोर्सेज का, ठीक है। सो क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहला चेंज क्या रहेगा अपना, सबसे पहला चेंज है कि अब पहले क्या होता था, हमारे पास में 4 स्ट्रीम हुआ करते थे, एक वोकेशनल भी हुआ करता था। अब उसको हटाकर सिर्फ 3 स्ट्रीम कर दिया गया, जो पहले भी हुआ करता था। हमारे टाइम में 3 स्ट्रीम हुआ करते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है। वोकेशनल बोल के पहले नहीं हुआ करता था, रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, वो खत्म कर दिया गया, ठीक है, पहला। दूसरा, इन साइंस, पहले साइंस में कंपलसरी होता था PCM या PCMB, मतलब 3 या 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन उन्हें लेना ही पड़ता था अगर साइंस स्टूडेंट कहलाना है तो। लेकिन अब साइंस कहलाने के लिए यू कैन ऑप्ट एनी वन, कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर आप साइंस स्टूडेंट भी कहला सकते हो। कहने का मतलब, मान लो मैं सिर्फ मैथ्स लेता हूँ तो भी मैं साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट कहलाऊंगा और अदर सब्जेक्ट्स मेरा दूसरे स्ट्रीम्स का भी रह सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको PCMB में से सब कुछ सब नहीं पढ़ना है, अब कोई एक को पढ़ के आप अपने आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर तो आर्ट्स वाले को, अब जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए लास्ट ईयर भी था कि उनका एक वोकेशनल मैंडेटरी था। इस साल से भी, अभी से भी क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। ये सारे चेंजेस 2027 के एग्जाम के लिए बताया जा रहा है, HS फर्स्ट ईयर, HS सेकंड ईयर सभी के लिए, ठीक है। HS सेकंड ईयर वाला जो भी करंट जो चल रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा चेंजेस आया है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक नया सब्जेक्ट 7th सब्जेक्ट एक ऐड किया जाएगा, जनरल साइंस बोलकर, ठीक है, जनरल साइंस बोलकर या जनरल स्टडीज बोलकर एक नया सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, जो कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम पे होगा। जैसे आपने क्लास 11 में EVS किया था, वैसे यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होगा, मतलब आपका 7th सब्जेक्ट रहेगा। सो पहले हमारे पास में ना, जैसे कॉमर्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ तो उनके पास में 6 सब्जेक्ट हुआ करता था। अकाउंट्स हो गया, BST हो गया, इंग्लिश हो गया, ऑल्टी हो गया, फाइनेंस हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया या फिर BMST हो गया, ठीक है। ये मान लो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो कि लोग लेते थे पहले, ठीक है। बट इस साल से क्या रहेगा आपके पास में, एक तो चेंज आया कि फाइनेंस को जो है बदल के क्या कर दिया गया, फाइनेंशियल लिटरेसी कर दिया गया। कि अब जो नया जो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वो नया बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंस हमारा गायब हो गया। अगले जो 12 का एग्जाम होगा उसमें फाइनेंस नहीं रहेगा, इस बार के लिए रहेगा। जो करंट अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं 12 में उनके लिए रहेगा, बट जो आने वाला होगा उनके लिए नहीं रहेगा, ठीक है।
अच्छा, इंग्लिश और ऑल्टी जो होता है अपना कोर सब्जेक्ट होता है। ऑल्टी मतलब MIL जो आप लेते हो, या फिर उसके ऑप्ट में आप ऑल्टी ले सकते हो। तो ये दोनों में पास होना कंपलसरी होता है, याद रखना है, इन दोनों में पास होना कंपलसरी होता है। अगर इन दोनों में फेल हो गया तो आपका रिजल्ट में फेल आता है, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर कंपार्टमेंटल का नोटिफिकेशन कब आएगा, रीचेकिंग का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जब आएगा नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, सो अकाउंटेंसी, BST, पहले क्या करते थे स्टूडेंट्स, ये 4 सब्जेक्ट में से किसी 3 का एग्जाम दिया। वैसे इस बार भी देखा गया कि बहुत बच्चों ने BMST का एग्जाम अपीयर ही नहीं किया, फिर भी वो पास हो गए हैं। बट अब से ऐसा नहीं होगा, आपको जो भी 6 सब्जेक्ट है, सब 6 का 6 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा। पास होना सिर्फ 5 में ही है, ठीक है। पास होना अगेन कितना में है, 5 में ही है, मतलब ओनली 5 विल बी काउंटेड फॉर परसेंटेज, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज अपना कितना रहेगा, 33%। ये रहा अपना ओवरऑल, जो भी वीडियो में आपने देखा था उसको हमने एक बार समराइज करके बता दिया, ठीक है। कोई डाउट होगा आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, फिर मेरा नंबर वहाँ पे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोर्सेज का। तो हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किया है इस बार के लिए। लास्ट ईयर का रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा रहा है, तो इस बार ही हमारा रिजल्ट अच्छा हो उसके लिए शुरू से पढ़ना शुरू करना होगा। तो हमने कोर्सेज ला दिया आपके लिए। बेसिकली GW ऑनलाइन बैचेस फॉर 12 कॉमर्स, ओके। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा इंग्लिश, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि ये लोड होने में प्रॉब्लम हो गया है। सो नोट्स अवेलेबल रहेगा आपके पास में, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होंगे इंग्लिश का, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ का, अकाउंटेंसी का, ओके, देन फाइनेंस का, और उसके बाद में फाइनेंस के बाद में इकोनॉमिक्स का, ये जो पेपर है इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है। देन उसके बाद में BMST का, ठीक है। तो BMST का बहुत डिमांड आता है क्योंकि ज़्यादातर टीचर पढ़ाते नहीं है, तो BMST का इन सभी सब्जेक्ट्स का, मतलब 7 सब्जेक्ट का, जो लास्ट ईयर जितने भी 7 सब्जेक्ट हमने पढ़ाए थे सभी का आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा अब, ठीक है। मतलब हमने लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चे प्री रजिस्टर किए हुए हैं, तो उनको तो कल ही पता चल गया होगा ऐप में, ठीक है। अभी देखो, अब यहाँ पर इस साल का अगर हम रिजल्ट की बात करें कि देखो कहीं पे भी कोई बच्चा जब जाता है तो टीचर को देखकर, रिजल्ट को देखकर जाता है। तो टीचर को देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, ठीक है। आप मैं ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो आप कोई वीडियो देख लीजिए, मैंने जो पढ़ाया वैसा ही मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर उससे सेटिस्फाइड हो तो कोर्स लो, नहीं सेटिस्फाइड हो तो मत लो, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखो ज्ञान विजडम JMS क्लासेस मेरा ऑफलाइन भी बैच चलता है, ज़्यादा नहीं 10 जन का ही बैच था इस बार, और ऑनलाइन में हमारा ज्ञान विजडम ऐप है, वहाँ पर मैंने मोर देन 90 के आसपास स्टूडेंट को पढ़ाया था लास्ट ईयर, ठीक है। सो 2026-2027 में डिस्टिंक्शन आया है 18 बच्चों का डिस्टिंक्शन, यानी कि 80% से अबव, और 4-5-6 बच्चा जो है 90% के आसपास का है, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन आया है हमारे पास में 41, अब एक बढ़ के 46 हो चुका है, क्योंकि 2 दिन में मुझे बहुत सारा डाटा मिला ही नहीं था। 46 फर्स्ट डिवीजन है, और सेकंड डिवीजन का मुझे पता चला अभी तक 8 जन का, ठीक है। सो 8 जन सेकंड डिवीजन है, आई गेस 10 के आसपास होंगे जो मुझे मैसेज मिला है, और 45-46 के आसपास क्या है हमारा फर्स्ट डिवीजन स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज टॉपर, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स में 97, BST में 95, इस साल का हाईएस्ट मैं बता रहा हूं अपने इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। अकाउंटेंसी में 96, इंग्लिश में 91, ऑल्टरनेटिव में 94, और फाइनेंस में 95, संभाव, निरोला, दीक्षिता, ये सारे नाम आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जिनका भी नाम दिया गया है, वो लोग कमेंट में बोले कि हाँ भाई सर सही बोल रहा है, क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा बोलता है कि ऐसे ही फेंक रहा है, ठीक है। तो बोले, ताकि अगर उन तक मैं वीडियो पहुँचता है तो वो बोले तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। वैसे मैंने 1-2 दिन पहले मैंने पूरा मार्कशीट के साथ में जो हमारे बेस्ट टॉपर्स थे उन सभी का मैंने पूरा मार्कशीट पूरा एक लाइव करके मैंने सारा बताया था रिजल्ट के दिन ही, ठीक है। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो स्वाति गोस्वामी 458, सूर्यादीप, ये हमसे गुस्सा हो गए मैं, क्योंकि मैं इनका मार्कशीट नहीं देखा, मतलब उस पर रिएक्ट नहीं किया, इसलिए तो मैं अभी फिर से सॉरी बोल रहा हूँ भाई, बात कर लो, ब्लॉक मार दिया हुआ है हमको ये। 452 और 450 आया है दीक्षिता राजखोवा, ये 3 स्टूडेंट का, ठीक है। संभाव का भी इसके आसपास का ही नंबर है, ओके। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। इन सभी को हमने गिफ्ट भी एक अनाउंस किया था कि फर्स्ट सेम का आप लोगों के लिए इनके और इनके साथ में संभाव का भी सारा सब्जेक्ट जो भी हम कराएंगे, हम बेसिकली फर्स्ट सेम में FSC और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश कराते हैं, तो फ्री कोर्स रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ये जो कोर्सेज है इसको कैसे लेना है, इसमें आपको क्या क्या फीचर मिलेगा। सबसे पहला लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलेगा एज पर लेटेस्ट करिकुलम, जो भी करिकुलम में चेंजेस हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और मेरा नोट जो है एकदम ओरिजिनल होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रीड होता है, ढंग से पढ़ लोगे। अप्रॉक्सीमेटली हर सब्जेक्ट का 50 से लेकर 100 पेज के आसपास का रहेगा। इकोनॉमिक्स का 130 पेज का है, इतना पढ़ लिया तो लेटर कंफर्म है। लेटर क्या, उससे ज़्यादा मार्क्स भी आता है, ठीक है। जो आया ही है 90+, 95, 97 ऐसे भी आया है। MCQ क्वेश्चन बैंक अगर नीड हुआ तो हो सकता है आप लोगों का इस बार से MCQ भी लागू हो जाए क्लास 12 में, तो इसलिए MCQ क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। 1000+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पर सब्जेक्ट, ठीक है। और एकदम जो बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन होगा वैसा वैसा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ऐप में ही आप वहाँ पर टेस्ट भी दे पाओगे। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको मिलेगा, जो कि हम क्लास में जनरली करा देते हैं जो भी सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। कवरिंग मोर देन 2 बुक्स, यहाँ पर आपको 2 से ज़्यादा बुक
जो है हम कवर करते हैं, हमको एक सब्जेक्ट का एक बुक फॉलो नहीं करते हैं, 2-3 बुक फॉलो करते हैं, ठीक है। क्लास लैंग्वेज जो है इंग्लिश रहेगा, और इस बार हमने सोचा है कि जो अकाउंटेंसी है ना उसके लिए हम असमिस में कराएंगे, ठीक है। अकाउंटेंसी को असमिस में पहले मैं 1-2 क्लास लूंगा, अगर स्टूडेंट्स को असमिस में समझ में आया तो फिर असमिस रखेंगे, नहीं तो हिंदी जैसे हम कराते हैं वैसे कराएंगे, ठीक है। बट इस बार ट्राई करना है कि असमिस में कराएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको असमिस ही ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। आई कैन स्पीक असमिस गुड, मोटा मोटी बोल लेता हूँ, ठीक है। देन 5 सैंपल, एक्चुअली हमारे स्कूल्स वगैरह में तो असमिस बोलना ही पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं तो यहाँ पे भी समझ ही जाएंगे। 5 आपको सैंपल पेपर मिलेगा, अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेगा, और 5 आपको सैंपल पेपर मिलेंगे जो आप अगर कर लेते हो तो वही 5 सैंपल पेपर से। और इस बार मैं सैंपल पेपर अक्टूबर में ही रिलीज कर दूंगा, ठीक है। मैं एकदम बहुत लास्ट ईयर मैंने शायद जनवरी-फरवरी तक पहुंच गया था, इस बार मैं अक्टूबर में रिलीज कर दूंगा, तो 3-4 महीना मिल जाएगा आपके पास में, ढंग से कवर कर लीजिएगा। 5 पेपर लेटर कंफर्म है, एकदम लेटर कंफर्म है, उसी से आएगा। इस बार का भी मैंने हर एक पेपर के साथ में एनालिसिस भी किया था, 70 to 80% क्वेश्चन कॉमन गिर रहा था, 70 to 80%, ठीक है। एकदम 70 to 80% क्वेश्चन जो है कॉमन गिर रहा था आराम से। हाँ, किसी में तो 90 भी गया है, किसी में 70-80% सब में कॉमन था, तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मुझे आपको डेली का 1 घंटा लाइव का और 2 घंटा घर पे पढ़ना है, 3 घंटा आपको डेली पढ़ना है बस। हाँ, बाद बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज बताते रहता हूँ कैसे पढ़ना है, टाइम शेड्यूल कैसे करना है, अपना टाइम टेबल क्या रखना है, क्या क्या अपना रोड मैप होना चाहिए, सब मैं बताते रहूँगा, ठीक है। चलिए अगर हम फी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम फी की बात करते हैं तो फी कैसा रहेगा, तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है। फी हमारा अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अकाउंटेंसी का लाइव प्लस रिकॉर्डेड 399 रहेगा, लेकिन ये ओरिजिनल फी है, ये आपको नहीं पे करना, आपको पे करना है 1999, जो कि लास्ट ईयर था वही है, कोई चेंजेस हमने नहीं किया, ठीक है। साथ में अकाउंटेंसी में आपको 2 फायदा मिलेगा, अगर एसएमएस वाला हुआ तो लाइव आपको मिलेगा ही, प्लस जो मैंने लास्ट ईयर जो कराया था हिंदी में, ठीक है, जो मैंने हिंदी में कराया है वो सारा का सारा वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। सो बेसिकली आपके पास में 2 लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा, आप जो मन करे उसमें पढ़ो, ठीक है, बस अच्छा मार्क्स आना चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस सेटअप तो आपको हम देते ही रहेंगे। बिजनेस स्टडीज 1999, लेकिन आपको पे करना है ओनली 999। फाइनेंस 1999 पे करना है ओनली 999। इकोनॉमिक्स 1999 पे करना है ओनली 999। इंग्लिश 2499 पे करना है 1299, और ऑल्टरनेटिव इंग्लिश 2499 पे करना है 1999। ये सब पूरा 1 ईयर का कोर्स है, मंथली हम नहीं पे करते हैं। हाँ, आपको हम पार्ट पेमेंट का ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, आप 2 इंस्टॉलमेंट पे या 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो, इसका हम ऑप्शन दे देंगे। इसके लिए आपको हमें मैसेज करना है, डायरेक्ट ऐप से अगर बाई करना है तो ये सारे प्राइस आपके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में BMST जो है ना, इसके लिए 399 है, बट आपको मिलेगा 1999 में, ठीक है। सो ओवरऑल जो हम देखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट हमारा बन रहा है 18,000 या 19,000 के आसपास, बट आपको पड़ेगा कितना, 95,999 में, मतलब 10,000 के आसपास में। बट रुक जाना, 10,000 है नहीं, इसमें आपका और बहुत कमने वाला है, ठीक है। क्या कमने वाला है मैं बताता हूँ, इसमें आपका और क्या कम हो जाएगा, 10,000 के आसपास तो हुआ है। देखो, अगर आप कॉम्बो सब्जेक्ट लेते हो, सिंगल सब्जेक्ट एक एक कोई बच्चा बाई करता है, जैसे आज एक लिया, 2 दिन बाद एक लिया, तो वहां पे आपका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्बो में लेते हो, मिनी कॉम्बो, जैसे मान लो अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज, 2 सब्जेक्ट का अगर हम कॉम्बो बनाते हैं, ठीक है, इस तरह हमको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज दोनों ही चाहिए, तो 2499 दोनों का आफ्टर डिस्काउंट प्राइस होता है, आपको मिलेगा ओनली ₹8। अच्छा, आफ्टर डिस्काउंट आपको 2499 में मिल जाएगा, ठीक है, अकाउंटेंसी प्लस BST दोनों मिलाकर, ठीक है, जो बेसिकली 3,000 के आसपास होता है, बट आपको मिलेगा 2500 में। ओके, कोर इंग्लिश प्लस ऑल्टरनेटिव इंग्लिश 1999 में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप 500-600 रुपये बचा लोगे। और इकोनॉमिक्स फाइनेंस 1499, अगर आप यहाँ पर 4999 बचा लोगे, ठीक है, मतलब 499 मतलब 500 रुपये बचा लोगे। फिर हम बात करें मिड साइज कॉम्बो की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कोई बच्चा अगर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज फाइनेंस इकोनॉमिक्स लेता है, मतलब कोर कॉमर्स हो गया है, तो कोर कॉमर्स में आपका 3499 में सारा आ जाएगा, 1500 के आसपास आपका सेविंग्स हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इंग्लिश ऑल्टरनेटिव इंग्लिश अगर कोई लेता है तो वहां पे आपका अगेन 399 1597 का आपका सेविंग हो जाएगा। और सबसे बेस्ट आपके लिए मैं जो बोलूंगा, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो, अगर पहले से फॉलो करते आ रहे हो, प्री रजिस्टर वाले स्टूडेंट्स हो, तो आप लोगों के लिए तो और फायदा है। अभी मैं बताऊंगा क्या फायदा है आप लोगों का, ठीक है। मैं पहले बोल रहा था कि रजिस्टर कर लो, आप लोगों का फायदा होगा, सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना, वो भी आपका रिफंडेबल रहेगा, ठीक है ना। तो देखो 30% आपका ऑफ हो जाता है, बेस्ट रहेगा आपके लिए ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो में, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज फाइनेंस इकोनॉमिक्स ऑल्टी सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। 6 का 6 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, कितने में आपको मिल जाएगा, ये 4999 में ओनली 5000 में आपको ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो मिल जाएगा। कोई आर्ट्स वाला है तो इंग्लिश ऑल्टी और इकोनॉमिक्स ले सकता है 2499 में, सिर्फ आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। हम ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब नहीं पढ़ाते हैं, तो जो पढ़ाते हैं वही आपको पे देंगे, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ऑल्टी सभी का कॉमन होता है, साइंस का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो, तो 2 सब्जेक्ट का कोई लेना है तो वो ले सकता है। कोई अगर इकोनॉमिक्स ऐड करके आर्ट्स वाले ले सकते हैं तो उनका सिर्फ 2499 में मिल जाएगा, ठीक है, पूरा 1 ईयर का कोर्स। और BMST कोई अगर लेता है तो उसका 3999 है, बट सिंगल में आपको पड़ेगा 1999, ठीक है। बट अगर कोई बच्चा
ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो लेता है तो उसका क्या फायदा होगा। देखो ऑल सब्जेक्ट कॉम्बो का मतलब क्या हुआ कि आप अकाउंटेंसी ले रहे हो, बिजनेस स्टडीज ले रहे हो, इंग्लिश ले रहे हो, ऑल्टी ले रहे हो, फाइनेंस इकोनॉमिक्स से कोई एक ही आप लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको अगर 6 सब्जेक्ट बनाना है तो कोई एक ही आपने लिया होगा। और साथ में अगर BMST है तो विथ BMST अगेन आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब ओनली एट ₹5,999 में 6000 में आपको ऑल सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, पूरे 1 ईयर का कोर्स। और अगर आप BMST वाले नहीं हो, इन दैट केस आपको मिल रहा है कितना, 4,999 में ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। सो विथ BMST 5,999 फाइनल प्राइस और विदाउट BMST ओनली 4,999, ओके। नाउ जो बच्चा रजिस्टर कर चुका है पहले से, तो ये जो प्राइसेस हमने बताया है इसके ऊपर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। आप जो भी कॉम्बिनेशन चूज करना चाहते हो चूज कर लो, 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिलेगा, ठीक है। और 20% ऑफ मिलेगा सिंगल सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए 20% आपके लिए ऑफ रहेगा, ठीक है। लेकिन बाई कैसे करना है, डायरेक्ट ऐप से नहीं, मुझसे बाई करना नहीं, तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म फी एक्स्ट्रा से ऐड हो जाता है, कुछ चार्जेस भी ऐड हो जाते हैं, तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिएगा, वहां से आप बाई कर, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एडिशनल 10% है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो 10 बच्चा होगा हर एक सब्जेक्ट में, जो डायरेक्ट ऐप से लेना चाहता है, डायरेक्ट ऐप से। जैसे मान लो कोई है कि बोलता है नहीं मेरे को सिर्फ ना इंग्लिश ही लेना है, तो इंग्लिश में भी आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, भले आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो। जो रजिस्टर्ड है उनके तो मैंने बता ही दिया। तो सपोज मान लो कोई बच्चा रजिस्टर्ड है और वो बोलता है कि सर हमको ना 4,999 वाला बैच चाहिए, तो रजिस्टर्ड वाले में क्या हो गया, 10% ऑल कॉम्बो में ऑफ हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली 500 रुपये उनको और ऑफ हो गया, तो 4,499 मतलब 4,500 में आपका ऑल सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। कोई अगर BMST वाला है तो उसका कितना हो जाएगा, 5,400 के आसपास में ऑल सब्जेक्ट उसको मिल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। सो कम से कम हमने प्राइस रखा है, 1 साल का फी है। इसमें भी आपको पार्ट पेमेंट का ऑप्शन है, बट हाँ पार्ट पेमेंट के लिए आपको ये सब ऑफर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो एक बार में पे करेगा उनको ये सब ऑफर्स मिलेंगे, ओके। सो ये सब रहा हमारा आज हमारा प्राइस लिस्ट, मतलब हमने अपना बता दिया कौन सा कोर्स कितना में। कुल मिला के बहुत सारा चेंजेस आने वाले हैं, हो सकता है आप लोग का MCQ भी इंट्रोड्यूस हो। सिंपली 4,999 वाला बैच सेलेक्ट करना है, हाँ एक बार में लोगे। अगर प्री रजिस्टर हो तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर नहीं करे हो रजिस्टर तो कोई दिक्कत नहीं है, 4,999 भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में, और बहुत ही जल्द हम क्लास स्टार्ट करेंगे। हम क्लास स्टार्ट कर देंगे मई के 10 या 12 तारीख से, ठीक है। सो ये 8-10 दिन का हम विंडो पीरियड रखते हैं एडमिशन के लिए, जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए। इस बीच में भी हम 1-2 लाइव लेने का ट्राई करेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय असम।